Mr. Hassan and Fawaz of class 5 will show us the Quranic wonders. The Quran and science. Have you wondered how a book that appeared 1,500 years ago has the elaborate knowledge of which scientists took ages to discover? Some people are unable to accept the fact written in Quran, but they cannot deny that the word mentioned in the holy book are true. Let us all understand through some examples in Quran that has correlation with science. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तादरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया है चंद इशारों में। मोहतरम सामीन, हमारा आज का मौजू है कुरान और साइंस। क्या कभी आपने गौर किया 1500 साल पहले अरब के सहराओं में शाये होने वाली किताब कुरान मजीद में कितना वसी इल्म है कि जिसे दरियाफ्त करने में साइंसदानों को इतना ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ लोग कुरान में लिखी बातों को तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मुकद्दस किताब में लिखे अल्फाज सच और हक हैं। आइए हम सब इन चंद हिकायत को समझें जिनका साइंस के साथ बाहमी ताल्लुक है। The creation of universe, the Quran says, did not those who disbelieve see that heaven and the earth were joined together as one solid mass, then he parted them. The science says, the whole universe was initially one big mass. Then there was a separation which resulted in the formation of galaxies. These are divided to form stars, planets, the sun, the moon, and so on. The Quranic verse and the Big Bang are inescapable. How could a book which appeared in desert of Arabia 1,500 years ago contain this profound scientific truth? Isn't it shocking? कायनात की तख्लीक। कुरान मजीद इस हकीकत को इन अल्फाज में बयान करता है, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रत्कन फफतहनाहुमा। क्या लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और जमीन में सब एक मिली हुई शक्ल में जुड़े हुए थे, हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया। बिग बैंग थ्योरी वाज़ेह करती है कि पूरी कायनात शुरू में एक बड़ा मास था, फिर जुदा जुदा हुआ, जिसके नतीजे में कहकशाएं बनी, फिर यह तकसीम होकर सितारे, सैयारे, सूरज, चांद वगैरह बने। The light of the moon is reflected light. Blessed is he who made stars and skies and placed there in along the sun, and the moon which has reflected light. Science now tells us moonlight is actually sunlight that shines on moon and reflects back. The glorious Quran and the modern science are thus in perfect agreement about the difference in the nature of sunlight and moonlight. तो आइए हमारे अगले मौजू पर। कुरान कहता है, तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाई बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए, चिराग और रोशन करने वाला चांद बनाया। साइंस अब हमें बताती है कि चांदनी दरअसल सूरज की रोशनी है जो चांद पर चमकती है और पीछे की अक्कासी करती है। इस तरह कुरान और जदीद साइंस सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी की नौइयत में फ़र्क के बारे में बिल्कुल मुत्तफ़िक है। Barrier between two seas. He was the two bodies of fresh water and salt water. Yet between them is a barrier they never crossed. Modern scientists discovered that in the places where two different seas meet, there is a barrier between them. This barrier divides the two seas. Each sea has its own temperature, salinity, and density. Yet the two seas appear to us one sea. We can see this barrier in several places, like River Nile, Mediterranean Sea, North Sea, and Baltic Sea. दो समुंदरों के दरमियान रुकावट, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। दो समुंदरों को उसने छोड़ दिया कि बाहिम मिल जाएं, फिर भी उनके दरमियान एक पर्दा हाइल है जिससे वो अलग अलग हैं। जदीद साइंस ने दरियाफ्त किया है कि जिन जगहों पर दो मुख्तलिफ समुंदर मिलते हैं उनके दरमियान एक रुकावट होती है। यह रुकावट दो समुंदरों को इस तरह तकसीम करती है कि हर समुंदर का अपना दर्जा हरारत है, फिर भी हमें दो समुंदर एक समुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ आप दरियाई नील और बहीरा रोम के समुंदर, बाल्टिक समुंदर, शुमाली समुंदर जैसे कई मुकामात पर देख सकते हैं। Winds gather clouds, we send fertilizing winds, then they cause rain to disinfect
from the sky, providing you abundant water to drink, even though you could not store it up for yourself. Scientists have found that clouds go through the falling step to produce rain. The clouds are pushed by the wind, they join and stand together before they pour down as rain. अल्लाह ने फरमाया, हम जरखेज हवाएं भेजते हैं और फिर आसमान से बारिश बरसाते हैं जिससे पीने के लिए पानी मिलता है, हालांकि तुम उससे अपने लिए जखीरा नहीं कर सकते थे। साइंसदानों का कहना है कि बादल बारिश पैदा करने के लिए मराइल से गुजरते हैं। बादलों को हवा ढकेलती है, वो गिरने से पहले एक साथ जुड़ जाते हैं और फिर आसमान से बारिश बरसाते हैं। एक मिनट, एक गाड़ी बाहर खड़ी है रोड पे, यूपी बच्ची। They hindered the shaking of earth. The Quran here says, have we not made the earth as a wide expanse and the mountains as specks? अल्लाह जलील अर्दा मिहादा वल जिबाला औदादा, क्या यह वाकया नहीं है कि हमने ज़मीन को फर्श बनाया और पहाड़ों को मेखे? पहाड़ फूटों की तरह होते हैं और यही प्लेट टेक्टोनिक्स का जदीद नज़रिया कहता है कि पहाड़ ज़मीन के लिए इस्तेहकाम का काम करते हैं, वो ज़मीन को हिलने से रोकते हैं। Fruits and everything are made in pairs. The Quran mentions, and fruit of every kind he made in pairs. Fruits are from class. Scientists have found that plants have male and female organs. The Quranic description are absolutely accurate and agree perfectly with modern research on this. Besides these, there are many topics discussed in Quran on astronomy, geology, geography, biology, oceanography, embryology, physics and physiology. और हर किस्म के फल इसने जोड़े बनाए। साइंसदानों की दरियाफ्त है कि फल फूलों से होती है, फूलों में नर और मादा का अज़ा होता है। इस पर भी जदीद तहकीकात कुरान से बिल्कुल मुत्तफिक है। कुरान मजीद में ऐसे बहुत से मौज़ूआत जिक्र किए गए हैं। कुछ साइंसदान जिन्होंने कुरान मजीद को अपने नज़रियात में एक मिसाल के तौर पर लिया है। Scientists who converted to Islam. Scientists who taken the Quran as an example for their theories have converted to Islam. The scientific miracles in the Holy Quran has inspired many scientists to convert to Islam. Keith Moore, Albert Pronner, Professor Sayevada, Dr. Atul Shikada, Dr. Morris and many more. साइंसदान जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। कुरान पाक में साइंसी मौजूदात ने बहुत से साइंसदानों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया, जिनके नाम अभी आपने सुने। अल्लाह ताला हमें कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और उसको समझने की भी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।